A very good morning to all my dear students. This is the lecture number 11th for the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. In the previous lecture, we have already discussed about the mole concept. We have done all the numericals which are in your syllabus, and we have also discussed the empirical and molecular formula. So in today's lecture, I am going to discuss the chemical reactions. What are chemical reactions and various methods are there. And in today's lecture, we are going to discuss the hit and trial method for balancing the chemical equations. So students, take your copy and pen and then start studying. So let us start our today's lecture. The first topic is balancing chemical equations. So why there is need to balance chemical equation? रासायनिक समीकरण को balance या संतुलित क्यों किया जाता है? And one method is there, hit and trial method. In today's lecture, we are going to discuss. So first of all, what is chemical equation? रासायनिक समीकरण क्या होता है? So it's a small definition, a brief representation of a chemical reaction in terms of symbols and formula of the substances involved. Actually, chemical equation क्या होता है? It is the representation of chemical reaction. Okay, chemical equation is the brief, is the short description or representation of chemical reaction in terms of symbol and formula of the substance involved. Let us see the example. One reaction I have written, calcium carbonate when reacts with hydrochloric acid, it will give calcium chloride, water molecule and carbon dioxide. So this is a complete balanced chemical equation. So this chemical reaction is representing a chemical reaction. It is representing a particular chemical reaction in terms of symbols. You can see hydrogen symbol is H, chlorine symbol is C, Cl, calcium is Ca. Like this, these are symbols and formula. So calcium carbonate formula is CaCO3, HCl formula is hydrochloric acid formula is HCl, calcium chloride formula is CaCl2, water and carbon dioxide. So you can see chemical reaction जो है एक brief description होता है जो भी chemical reaction involved हो रहा है किसके terms में, symbols के terms में और formula के terms में. So the next topic is that essentials of chemical equations. क्यों ज़रूरत पड़ती है chemical equations की? Let us see the point. It must represent an actual chemical reaction. जो भी chemical equation आप दे रहे हो वो एक particular एक actual chemical reaction को represent करना चाहिए. आपने पढ़ा है various types of chemical reaction class 10th में. You can say addition reactions are there, substitution is there, decomposition is there, various reactions are there, precipitation reaction, neutralization reaction and so on. So जो भी chemical equations होता है वो particular एक रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाना चाहिए, actual chemical reaction को वो represent करे. Next is it must follow conservation of mass. आपने पढ़ा है कि chemical equations जो balanced होते हैं they should follow the law of conservation of mass. यानी mass जो है वो conserved होना चाहिए. That means आपको पता है कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होता है यानी अभिकारक और एरो के राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होता है यानी उत्पाद. तो इनके जो मासेस हैं वो इक्वल होना चाहिए. दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. आपने इसको बहुत बार डिटेल में पढ़ा है. नेक्स्ट एसेंशियल्स ऑफ केमिकल इक्वेशन इज इट मस्ट बी बैलेंस्ड. हाउ इट इज बैलेंस्ड? इट विल फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. यानी कि रिएक्टेंट का जो मास है that should be equal to the product mass. It must be balanced. Balanced कोई भी chemical equation तभी होगा जब reactant के side का mass product के side के mass के बराबर हो. Otherwise it will not be balanced. It will be counted as unbalanced. Next essentials is it should be molecular. Molecular मतलब molecule के form में होना चाहिए. That means H2O2 N2 molecules के form में. ठीक है. सो दीज वर द एसेंशियल ऑफ केमिकल इक्वेशन. इट इज़ वेरी सिंपल. आप इसको देख लीजिएगा. इट इज़ वेरी इजी. जस्ट कीप द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड. सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट व्हाट इंफॉर्मेशन इज कन्वेड बाय अ केमिकल रिएक्शन. हमें क्या सूचना मिलती है केमिकल रिएक्शन से? फर्स्ट इंफॉर्मेशन यू गेट इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन. क्वालिटेटिव मीन्स गुणात्मक आंकड़ा.
ठीक है, उसके पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज दैट, परिमाणात्मक आंकड़ा, यानी कि जो भी उसका अमाउंट है उससे कनेक्टेड हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा। सो व्हाट डू यू सी इन क्वालिटेटिव और गुणात्मक आंकड़ा में? इट कन्वेज द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन यानी गुणात्मक आंकड़ा में आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के नेम्स पता कर सकते हो, रिएक्टेंट्स के यानी अभिकारक के, और प्रोडक्ट्स के यानी कि जो उत्पाद है उनके नेम्स हमें पता चलता है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव, मीन्स परिमाणात्मक आंकड़ा कि कितना अमाउंट है, इसमें हम क्या क्या इंफॉर्मेशन लेते हैं? इट कन्वेज एक्चुअल नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्पीशीज। ये एक्चुअल नंबर बताता है कि कितने रिएक्टेंट और कितने प्रोडक्ट स्पीशीज या कंपाउंड बने हैं। Next, it tells the relative masses of the reactant and products. You can say masses, amount को बता रहा है. It tells the relative masses, द्रव्यमान को बता रहा है इनके reactants के और products के. It conveys the relative number of reactants and products moles. Moles में भी बताएगा कि reactants के particular कितने मोल react कर रहे हैं आपस में और कितने मोल products के वो बना रहे हैं. It also conveys the volume of the gaseous reactants and products. So आप quantitative information में आप देख सकते हो कि मात्रा यानी कि amount को बता रहा है, and qualitative में उसकी property को बता रहा है, उसके आप कह सकते हो उसके गुण को बता रहा है. So in qualitative it conveys the names of reactant and product, and in quantitative यानी परिमाणात्मक आंकड़े में numbers को बताएगा कि कितने actual number of reactant and product participate कर रहे हैं, उनके पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के रिलेटिव मासेस क्या हैं, ये बताएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के कितने रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, और इट ऑल्सो टेल्स द वॉल्यूम यानी आयतन बताएगा किसी भी गैसियस रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के. So students, there are various methods that how you are going to balance the chemical equation, balancing of chemical equation. In today's lecture, we are going to study only the first topic, hit and trial method. So these are the four methods how you can balance a chemical equation. First is hit and trial method, which we are going to discuss in today's lecture. Second is partial equation method. Third is oxidation number method, and the fourth is ion electron method. So in your syllabus, in your course, two methods are there, hit and trial method and partial equation method. बाकी के जो methods हैं वो आप redox reaction में पढ़ोगे. But in this chapter only I am going to teach you the hit and trial method. After this chapter, some basic concepts of chemistry, I will be teaching you all the periodic table. And after periodic table, when I will teach you redox reaction, redox अभिक्रिया जब हम पढ़ाएंगे तब उसमें आप पार्शियल इक्वेशन और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड दोनों मेथड से आप बैलेंस करना सीखोगे. बिकॉज अगर मैं अभी सारे मेथड्स बता दूंगी सो यू विल बी कंफ्यूज. सो वन बाय वन स्लोली एंड सीडी वी विल डू द चैप्टर्स. सो फर्स्ट मेथड इज हिट एंड ट्रायल मेथड. ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का. यू कैन सी हियर इट इज द सिंपलेस्ट मेथड फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रायल एंड एरर मेथड. इसको ट्रायल और एरर मेथड भी कहते हैं. इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंपल केमिकल रिएक्शंस. हिट एंड ट्रायल मेथड जो होता है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का, वो सिर्फ सिंपल यानी बहुत ही सिंपल केमिकल रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है. जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है उसके लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड्स यूज़ नहीं कर सकते हैं. उसके लिए पार्शियल इक्वेशन मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है. सो फॉर सिंपल बैलेंसिंग इक्वेशन वी विल यूज़ हिट एंड ट्रायल मेथड. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में. इसमें स्टेप्स हैं, आप देख लेना. इसमें सिंपल होल नंबर से हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है. सो लेट अस स्टार्ट हिट एंड ट्रायल मेथड फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट द बैलेंसिंग पार्ट. हियर वन केमिकल इक्वेशन इज गिवन. Magnesium nitrate Mg3N2 when reacts with water molecule, it converts into magnesium hydroxide and ammonia gas is formed. You already know that on the left hand side it is reactants. Reactants participate करते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं अभिकारक. And when the chemical reaction is completed between the reactant molecule, it get converted into products या उत्पाद. ये आपको already पता है, I know all of you know it.
सो इट इज़ वेरी सिंपल, रिएक्टेंट्स और अभिकारक हमेशा एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं और प्रोडक्ट यानी उत्पाद हमेशा एरो के राइट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्लस साइन क्या दिखा रहा, व्हाट दिस प्लस साइन इज डिनोटिंग हियर मीन्स मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट इज कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। ये दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, दे बोथ आर परफॉर्मिंग केमिकल रिएक्शन एंड दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। यानी दो प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिल रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्लस ammonia gas. So this plus sign is denoting how many molecules are participating together to give a chemical reaction. So balancing is done in the following steps. So let us see a very few description is that is very easy. Hit and trial method बहुत simple होता है. Simply क्या किया जाता है कि पहले हो सकता है जो आपको equation दिया जाए वो word form में दिया जाए, जैसे बोला जाए कि magnesium, what happens when magnesium nitrate reacts with water, राइट इट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर ऐसे लैंग्वेज में दे देगा तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जितने भी आपको रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के नाम दे रहा है, कंपाउंड के नाम, आपको उसको करेक्टली लिखना पड़ेगा। ओके, फॉर दिस यू शुड नो हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला बाय क्रिस क्रॉस मेथड। उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अगर आप यही गलत लिखोगे मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला, देन इट विल बी एब्सोल्युटली जीरो फॉर यू। सो मैग्नीशियम नाइट्रेट का करेक्ट आप फॉर्मूला लिखोगे, वाटर लिखोगे, बीच में एरो दिखा रहा है कि रिएक्टेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। सो एरो के बाद आप प्रोडक्ट्स लिखोगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अमोनिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इसके लिए आपको प्लस साइन पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्लस साइन लिखा जाता है जो आपस में रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं। एरो हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ लगाते हैं और जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है तो उतने हम प्लस साइन लगाते जाएंगे। सो दिस इज द बेसिक स्केलेटन इक्वेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड द बेसिक स्केलेटन इक्वेशन। अगर अब आप देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या है कि बैलेंस द मैग्नीशियम एटम। इसमें सिंपली आप ये देखोगे इस हिट एंड ट्रायल मेथड में, जो आप क्लास 10th में भी कर रहे हो, आप ये देखो कि किस एटम, मतलब कौन सा एटम जो है वो सबसे मैक्सिमम नंबर है। क्लियर? अगर मैक्सिमम नंबर है तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, और या तो हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सा एटम जो है वो सबसे कम लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, या तो हम देखें कि कौन सा एटम सबसे ज़्यादा टाइम आ रहा है, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और कौन सा एटम सबसे कम बार आ रहा है, इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप नेक्स्ट इक्वेशन में देखोगे कि किस तरीके से एलिमेंट्री गैसेस इन्वॉल्व हो रही हैं, जैसे N2 हुआ, O2 हुआ, Cl2 हुआ, तो उसको हमको एलिमेंट्री गैसेस को हमको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये अभी आप नेक्स्ट एग्जांपल जब आप करोगे तो उसमें आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से कि कौन सा एटम मैक्सिमम नंबर बार है। अब आप यहाँ पे देखो Mg3 रिएक्टेंट साइड पे है और प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ एक Mg है। So you can say that maximum number of magnesium atoms are there in the reactant side. तो first step is balance the magnesium atoms. आपने balance कर दिया, यानी reactant की तरफ 3 magnesium atom था और product की तरफ 1 था, तो आपने 3 से multiply कर दिया. You can see here I am denoting with blue. Next is balance the nitrogen atom. 3 है magnesium, उसके बाद कौन सा atom है? 2. So here you can see 2 nitrogen atoms are there and in the product side only 1 atom is there. तो next हम step करते हैं कि हम nitrogen atom को balance कर लेते हैं. So you will write 2 towards the product side. So students, आपने magnesium और नाइट्रोजन के एटम्स को बैलेंस कर लिया. एज यू कैन सी मैग्नीशियम इज 3 ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड इट वाज ओनली 1. सो आपने 3 से पूरे मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई कर दिया. एंड नेक्स्ट आपने नाइट्रोजन बैलेंस किया. रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन 2 था, प्रोडक्ट साइड में n जो था ओनली 1 था, तो आपने पूरे मॉलिक्यूल में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये दोनों आपने कर लिया. अब आपको देखना है कि रिएक्टेंट साइड के एटम्स के नंबर जो हैं वो प्रोडक्ट साइड के एटम्स के इक्वल होने चाहिए. हर केस में आपको यही देखना है. सो आप चेक करो, मैग्नीशियम के 3 एटम्स रिएक्टेंट साइड में हैं, प्रोडक्ट में भी 3 एटम्स हैं. ओके, इट इज़ बैलेंस्ड. नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी नाइट्रोजन के 2 हैं. अब आपका बच क्या रहा है? ऑक्सीजन आप चेक करो कि ऑक्सीजन जो है इधर आपका
ओनली 1 है, और इधर आपका ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 है, सो दैट मीन्स यू हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम। और उसके बाद फिर हाइड्रोजन के एटम्स को भी आप देखोगे कि सारे एटम्स बराबर होने चाहिए। सो अगर आप देखो, अब हाइड्रोजन अगर हमको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो जब हमने मैग्नीशियम को बैलेंस किया था तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सामने 3 लगाया था। दिस 3 दैट मीन्स ये 3 पूरे कंपाउंड में के लिए एप्लीकेबल होगा। दैट मीन्स 3 मैग्नीशियम एटम्स आर देयर, 3 oxygen atoms are there and 3 hydrogen atoms are there. But you can see in the bracket OH whole twice, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का होल ट्वाइस है, यानी ऑक्सीजन जो है 6 है और हाइड्रोजन जो है आपका वो भी 6 है। सो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, यानी प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन इज टोटल 6, सो यू विल पुट हेयर 6। अब फिर हाइड्रोजन के भी नंबर को चेक कर लेते हैं। सो हाइड्रोजन इज नाउ 12, और इधर भी आप अगर करेक्ट करो तो यहाँ पे 6 हो गया, और यू कैन सी हियर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, यानी कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन जो है वो 12 हो गया है, ऑक्सीजन इज 6, हेंस द फाइनल बैलेंस इक्वेशन विल बी Mg3N2 प्लस 6H2O गिव्स 3MgOH ट्वाइस प्लस 2NH3। सो इस बैलेंस करने के लिए बस ये ध्यान देना कि रिएक्टेंट साइड के एटम्स should always be equal to the product side. So students, let us revise the steps how to balance the chemical equation by hit and trial method. So first step is that you have to write the correct formula of the reactant and products with plus sign in between with an arrow pointing from the reactants to the product. This is called the skeleton equation. This is already I told you all कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए किसका यूज़ होता है, एरो का यूज़ होता है। और जो भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उनके बीच में कौन सा साइन आप लगाओगे, प्लस साइन लगाओगे। सेकेंड में इज द इफ एन एलिमेंट्री गैस लाइक H2O2 N2 Cl2, ये सारे गैसेस जो हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही पाए जाते हैं नेचर में। ओके, H2O2 N2 Cl2 appears on either side of the equation, write the same in atomic form। अगर एलिमेंट्री गैसेस या तो H2 हो, O2 हो, N2 हो या Cl2 हो, अगर वो किसी भी साइड पे पाई जा रही है आइदर इन द साइड ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो उसको पहले उसके एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करके बैलेंस करेंगे। एटॉमिक फॉर्म मतलब अगर हाइड्रोजन H2 गैस दी है तो उसको हम H के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, O2 है तो उसको उसके एटॉमिक फॉर्म में O में कन्वर्ट कर देंगे, N2 है तो उसको उसके एटॉमिक फॉर्म में यानी N में, और सिमिलरली Cl2 को Cl फॉर्म में उसके एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आई विल शो यू दैट हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट the elementary gases like H2, O2, N2 and Cl2 into their atomic form and how you are going to balance it. So students, let us move on for the next step. Select the formula which contains the maximum number of atoms and start balancing. It's very simple. First step क्या था students कि आपको particular chemical equation जो भी है उसको properly लिखना है. That means reactant और प्रोडक्ट को सेपरेट करना है, उसके लिए यू हैव टू यूज एरो। दैट मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आप एरो लगाओगे। देन यू हैव टू यूज प्लस साइन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं उनके बीच में आप प्लस लगाओगे, और जितने प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं उनके बीच में आप प्लस लगाओगे। इट वॉज द एलिमेंट्री स्टेप, फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप था कि अगर आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में अगर कोई भी एलिमेंट्री गैस मतलब कि ये इसी तरीके से गैस नेचर में एग्जिस्ट करती है, जैसे N2 था, Cl2 था, O2 था, H2 था, अगर ये किसी भी साइड में पाई जा रही है तो आपको उसको उसके एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स अगर O2 दिया है तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू O, अगर N2 है यू हैव टू कन्वर्ट इनटू N, अगर H2 है तो इसी तरीके से H आपको उसके एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करना है। थर्ड स्टेप आप याद करो, आपने जब मैग्नीशियम नाइट्राइड जो प्रीवियस मैंने इक्वेशन कराया था Mg3N2, तो या तो आपको मैंने बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स सेलेक्ट करो वो पर्टिकुलर फॉर्मूला, या मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स वाले फॉर्मूले को सेलेक्ट करो। तो हमने मैग्नीशियम सेलेक्ट किया था, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के 3 एटम्स पाए जा रहे थे मैग्नीशियम नाइट्राइड में। So you have to select the formula which contains the maximum number of atoms and start balancing, और
फोर्थ स्टेप है यू स्टार्ट बैलेंसिंग द एटम्स विच अपीयर द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। या तो आप उस एटम से भी स्टार्ट कर सकते हो जो सबसे कम बार उस पर्टिकुलर रिएक्शन में आ रहा है। तो आपने देखा था कि मैग्नीशियम नाइट्राइड को हमने पहले मैग्नीशियम चूज किया था Mg3N2 क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर था मैग्नीशियम का 3 एटम्स थे। और या तो आप लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स से भी जो एटम पर्टिकुलर सबसे कम है स्केलेटन इक्वेशन में आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू। Then the fifth step is balance the atom of elementary gas in the last. Elementary gas जो H2, N2, Cl2, O2 है, आप उसको जब उसके एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करोगे उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको जो भी एलिमेंट्री गैसेस अगर या तो रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में दी है उसको सबसे पहले आपको उसके एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करना है और उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। Then the final step is that when the balancing is completed, complete the equation into molecular form. अभी आप मैं आगे के स्लाइड में मैं इक्वेशन बताऊंगी कि किस तरीके से आप पहले एलिमेंट्री गैस को आप पहले एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और सबसे लास्ट में आप एलिमेंट्री गैस को बैलेंस करके फिर उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। So students, let us see the example. You can see here C2H2 plus O2 gives CO2 plus H2. This is the arrow which is separating the reactant molecules and the product molecules. So अब इस इक्वेशन में आप देखो O2 is in its elementary form. ये गैस है O2। अगर H2 हो, O2 हो, Cl2 हो या N2 हो, ये सारी एलिमेंट्री गैसेस हैं, उनको आपको उसके एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करना है, उनके एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप देखो फर्स्ट स्टेप, राइट द ऑक्सीजन इन द एटॉमिक स्टेट। तो इस ऑक्सीजन को आपने एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दैट। अगर H2, O2, N2 एंड Cl2 दिस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री गैसेस आएंगे तो फर्स्ट स्टेप आप उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म को आप एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसको सिंगल कर दोगे। फिर आप देखो बैलेंस द कार्बन एटम। अब आप देखो इस इक्वेशन में कि कौन सा एटम सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो यू कैन सी हियर, या तो आप कार्बन से भी स्टार्ट कर सकते हो या तो आप इधर हाइड्रोजन से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट विद द कार्बन। यू कैन सी हियर ऑन द रिएक्टेंट साइड कार्बन कितनी है, 2 है। 2 numbers of carbon atoms are there and in the product side only 1 carbon atom is there. So while balancing the carbon atom you will put 2 in front of the whole molecule, that is CO2. Okay, now you have to check that how many oxygen atoms are there. हर स्टेप में आपको यही चेक करना है स्टूडेंट्स कि रिएक्टेंट साइड के एटम्स हमेशा प्रोडक्ट साइड के एटम्स के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर इधर जितना भी मान लीजिए कार्बन एटम है उतना प्रोडक्ट साइड में उतने ही कार्बन एटम आने हैं, जितना हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड में है उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। जितने भी पर्टिकुलर एटम्स हैं उनके नंबर रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल होने चाहिए, बस आपको यही ध्यान देना है। नेक्स्ट यू हैव टू बैलेंस दिस एटॉमिक ऑक्सीजन। नाउ वॉच वेरी केयरफुली दैट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड आप देखो कितने ऑक्सीजन है। यू कैन सी कार्बन डाइऑक्साइड के सामने 2 लगा है, सो ये 2 इस पूरे मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई होगा। सो ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन इज देयर, 2 into 2 4 एंड यू कैन सी 1 वाटर के साथ 1 ऑक्सीजन है। तो टोटल कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं प्रोडक्ट की तरफ, 5 हैं, बट रिएक्टेंट की तरफ ओनली एटॉमिक स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, सिंगल ऑक्सीजन इज देयर। सो आपने क्या लगा दिया, ऑक्सीजन एटॉमिक स्टेट के आगे आपने 5 लगा दिया। नाउ यू कैन चेक द नंबर्स कि अब आप चेक करो कि कार्बन के कितने नंबर हैं। रिएक्टेंट साइड में हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 2। प्रोडक्ट साइड में भी आप देखो 2 एटम्स हैं। How many oxygen atoms are there? 5 oxygen atoms are there towards the reactant side and 2 2s are 4 and 5 atoms of oxygen are there towards the product side. Now check the number of hydrogen. Towards the reactant side how many hydrogens are there? 2. And towards the product side how many hydrogens are there? 2. So this equation is balanced. फाइनल स्टेप में आपको क्या करना है, इस एटॉमिक ऑक्सीजन को उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या किया, सिंपली O को O2 बना दिया। अब आपने अगर एटॉमिक स्टेट को उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तब आप देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 10 हो गया।
तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको फर्दर चेक करना पड़ेगा कि अगर हमने ऑक्सीजन जो कि एटॉमिक फॉर्म में था उसको जब हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ऑक्सीजन का नंबर तो चेंज हो गया ना, इट इज़ नाउ 10। बट इधर आप अगर देखो रिएक्टेंट साइड में तो 10 नहीं था, इस साइड में ऑक्सीजन कितना था, 5 ही था, तो आपको उसको 10 बनाना है। सो ओनली एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड के सामने 4 लगा दो और वाटर मॉलिक्यूल के आगे 2 लगा दो, सो 4 2 ज़ा 8 and 2 oxygen. So total 10 oxygen are there in the product side also and in the reactant side also. Always in balancing chemical equation by hit and trial method, you have to keep in your mind कि हमेशा reactant side के atoms के number product side के atoms के number के बराबर होने चाहिए. One thing is that you have to keep in your mind, अगर equation में कोई भी एलिमेंट्री गैस पाई जाएगी, या तो वो रिएक्टेंट साइड में हो या प्रोडक्ट साइड में, एलिमेंट्री गैस जैसे O2, N2, Cl2 या H2, तो आपको उसके एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करना है, उसके एटम के स्टेट में कन्वर्ट करना है। फिर आपको वही स्टेप देखना है कि कौन सा एटम जो है पर्टिकुलर फॉर्मूला में सबसे ज़्यादा बार आ रहा है या कम बार आ रहा है, कोई भी आप एक स्टेप ले लो। आपको ये ध्यान देना है जब भी एलिमेंट्री गैसेस होंगी, आपने उसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया तो उसको बैलेंस आप सबसे लास्ट स्टेप में करोगे। जब सारे एटम्स को आपने बैलेंस कर दिया और सबसे लास्ट में आप उस पर्टिकुलर एटॉमिक गैस को आप बैलेंस करोगे और फिर लास्ट स्टेप में उस एटॉमिक फॉर्म को फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर क्रॉस चेक करोगे आप कि रिएक्टेंट साइड के एटम्स प्रोडक्ट साइड के एटम्स के बराबर है कि नहीं। सो स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको इस इक्वेशन में हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है और स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्ट बैलेंस द इक्वेशन। और इफ़ यू विश यू कैन राइट द स्टेप्स, बट मेरी तरफ से ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन डायरेक्टली यू कैन balance the equation. So these 8 equations are there. Be very careful, follow the steps, they are very simple. और हमेशा आप याद रखना कि अगर कोई भी इक्वेशन में बस एलिमेंट्री गैस आ रही है तो आपको उसके एटॉमिक फॉर्म में चेंज करना है और सबसे लास्ट में उस पर्टिकुलर एटम को, उस एलिमेंट्री गैस को जब एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया तब आप उसको बैलेंस करोगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आपको जो भी क्वेरीज़ हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर वीडियो में पूछ सकते हैं। हमेशा जब भी आप केमिस्ट्री का लेक्चर आप देखो तो हमेशा हाथ में कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। जितने भी मैंने टर्म्स लिखवाए हैं उसको सिस्टमेटिकली आप अपनी कॉपी में करिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, मैं आपको PDF के फॉर्म में मैं इसके नोट्स को भेज रही हूँ। और ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपको जो भी पढ़ना है उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। और इसके लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं कुछ टॉपिक्स हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस है केमिकल रिएक्शंस का, इट इज़ वेरी सिंपल। सिर्फ आपका ये बचा है सिलेबस में, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।